मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली धीरे धीरे। यस, क्या बोल रहे थे? हाँ भेज दूंगा। इवन यू कैन एक्सेस माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, वहाँ पे मैं सारे ये लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूँ। हाँ जस्ट कुछ नहीं, चैनल का कोई नाम नहीं रखा है, आप अनिरुद्ध घोष से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। अभी सर्च कर लो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू। यहाँ पे बहुत सारे अनिरुद्ध घोष है, तो जस्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप अनिरुद्ध घोष देते हो तो देखना लेक्चर 6 सीवीए इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पार्ट 5 ऐसे बोल के है एक लिंक दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा लॉगिन। खुल गया? नहीं जरूर कुछ ना वायरस लग गया है या टेम्पोररी फाइल्स बहुत ज्यादा हो गया। अब विंडोज आर बटन प्रेस करो और एक कमांड लिखो परसेंटेज टीएमपी परसेंटेज। परसेंटेज साइन ना 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 जस्ट परसेंटेज साइन टीएमपी एमपी अगेन परसेंटेज एंटर। एक फोल्डर ओपन हो जाएगा आपका। ओपन हुआ? होगा होगा। नहीं हुआ? अब सबको कंट्रोल ए प्रेस करो, सारा फाइल सिलेक्ट हो जाए। शिफ्ट डेल एंटर। क्या दिखा रहा है? होगा। उसी फोल्डर में जाके प्रेस किए ना, कंट्रोल ए एंड शिफ्ट डेल। डिलीट होगा, डिलीट करो।
उसके वजह से मशीन बहुत स्लो हो जाता है। फिर सी ड्राइव में कम से कम यूज करो आप सी ड्राइव को, उसको जितना खाली रखोगे उतना मशीन फास्ट होगा। पता नहीं, आई डोंट नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन बट गुड मॉर्निंग। कुछ आइटम्स डिलीट नहीं होंगे, उसे स्किप कर देना। हाँ वो स्किप कर दो, वो शायद भी हो। देखो प्रोसेसिंग फास्ट हुआ थोड़ा। ये एक मेजर रीजन होगा। So let us start then. So from yesterday's discussion, we have determined how to calculate operating invested capital, and also we have learned how to calculate the NOPLAT. Okay. Now today we will be learning about how to calculate or how to compute about the tax factor. Okay. Now, if you talk about the tax factor, now tax factor can be computed later on, but the first thing what we should understand that how we can calculate the effective tax rate and which particular tax rate we should use in the computation that has to be decided. Now, if you talk about the effective tax rate, which we acronym as ETR, it is the total tax due, also known as the current tax, divided by the profit before tax. This is the percentage of effective tax rate. As I called in my previous lecture, that it is an assumption which we take that whatever is the due divided by the profit before tax. And this we compute year-on-year basis and try to analyze that what is the average effective tax rate over the say last 5 years or the last 3 years, and then we apply that particular tax rate. This is one way of doing it. And whereas the marginal tax rate is that particular rate which is imposed by the law, okay, by the legal entities. Now, say for example, Income Tax Act 1961, it specifies that for a domestic company, we need to apply 30% tax rate, marginal tax rate, and for foreign companies, it is 40%. Okay, so this will be our marginal tax rate assumption. And if nothing is mentioned, okay, in the question mark in the question, then it is better that you go ahead with the marginal tax rate. So 40% or 30%? No, it depends on the nature of the company. If it is stated that a company and nothing of a sort of an MNC is stated, so okay, we can assume both. No, then you can assume that it is only a domestic company, and you can proceed.
So, but we should write a note now that whatever you do, whatever assumption you take, if you are taking an assumption that if it is a foreign company, then definitely you provide a note. Okay. So have you noted down the formula effective tax rate? Okay. Now, why actually there is a difference between the ETR and MTR? Maybe we can find that ETR is amounting to say around say 25%, or say it can be 35% also in some cases, in some of the years. But why there is a difference, that needs to be understood. First is, if you talk about the accounting standards, there are various methods of valuing a particular asset. As you know that, for example, depreciation. Depreciation can be, there are various methods of depreciation. One is straight line method. Another is written down value method. Another is sinking fund method. Another is annuity method. So there are various methods. Okay. Another is provision method also. So these are 4 to 5 methods which can be applied. But now if you're changing from SLM to say WDV or SLM to sinking fund method, then there is a retrospective and prospective effect. I hope you have read it in your course. Whatever retrospective prospective effect. Prospective analysis to no, see, if you are changing from one method to the other method, either you charge less depreciation or more depreciation. That means either the value of the asset gets decreased more or it gets inflated. To instance, तो उस केस में जो भी आपका केस रहेगा तो उस केस बेसिस पे रेट्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव इफेक्ट हम लोग करेंगे. But if that happens, depreciation is a non-cash expense, we all know. Now, if that item is presented in the income statement, then what will happen? The profitability will also deviate accordingly. हाँ या ना? तो मान लीजिए कि अगर आप SLM मेथड कर रहे हो तो SLM मेथड में क्या हर साल सेम, it is same. But in written down value method, what happens? Every year the value reduces. The value of depreciation also reduces. Now, if the value of depreciation reduces, then your income will be inflated. And if your income is inflated, then tax due will be also more. So hence, effective tax rate will be not equal to the marginal tax rate. Right? So this is one reason of difference. Second, it can also happen that, say, for example, your firm, irrespective of an MNC or irrespective of a domestic company, if it establishes in a special economic zone, okay, so in a special economic zone, it is a tax holiday is given. Okay. Now, if say Tata, when it set up its plant, nano plant in Gujarat government chief minister gave 25 years of tax holiday. So that means what? 25 years, he doesn't have to pay any corporate tax. Now, for that, his effective tax rate will be equals to 0. His effective tax rate will be equal to 0 because there is no tax which needs to be paid. So current tax due will be what? 0 divided by profit before tax. That will be something amount. So, but government also sees that no, he cannot escape tax. We need to charge him something minimum. So that's why minimum alternate tax. But now these things have already gone. Now GST has replaced MAT. Now companies has to pay GST, irrespective whether he has been given tax, he or she has been given tax holiday or not. Correct. But again, if there is also another thing that GSTIN number, it is known as GST number. So GST number, whomsoever gets that number, they can also apply for refund also. So whatever tax they are passing on or charging from the consumers, they again get back that as well. So this is again another, you can say, reason. That's why the effective tax rate is not equal to the marginal tax rate, which has been prescribed by the law. Now, which tax rate should we use? Okay. Now, best is that you always apply the marginal tax rate. Why? Because nobody can challenge you that.
because it has been fixed by law. The bottom line is you should apply always marginal tax rate. If the question remains silent, then definitely you should apply marginal tax rate. Only the reason being that it is imposed by law and nobody can question the authenticity. But if you are applying the effective tax rate, again somebody might question you that how you are getting that figure. Say for example, I am telling you, okay, current tax due, and you are taking the average of the 5 years. But is that a true thing? There can be certain defaults, right? Even sometimes it can also happen that though it is due, you are not paying it in that quarter. You are transferring it to the next quarter. So that means the total amount can become dubious. So it is always better to use marginal tax rate rather than the effective tax rate. This you should remember. Now, a very important concept, net investment and ROIC. Okay. So return on invested capital, correct? रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, जो OIC हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, तो उसी के ऊपर रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल। नाउ यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ ऑर्गेनिक प्रॉफिट। दिस इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक प्रॉफिट, व्हाट आई टोल्ड। हाँ जी, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक प्रॉफिट। एंड इस ऑर्गेनिक प्रॉफिट इज अ यार्डस्टिक थ्रू विच आप देखोगे जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कंपनी के स्टॉक सिलेक्ट करने का यही एक तरीका है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको अब गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि ये ROIC जो है, ये ROIC से ही आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको देखना क्या है कि लास्ट 3 साल या लास्ट 5 साल में इस स्टॉक का मोमेंटम क्या है। मींस ROIC जो है वो ROIC किस रेट में ग्रो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक शेयर का नाम बता रहा हूँ। कभी एनालाइज करना कि इसका जो ROIC है, ये ROIC ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे इंक्रीजिंग रेट पे ग्रो हुआ है। हर साल इसका अच्छा स्टेडी ग्रोथ है। एंड इस वजह से देखना कि ये जो शेयर था, वो शेयर ऑलमोस्ट जो लॉन्च हुआ था करीबन ऐसी 200-300 रुपए में लॉन्च हुआ था। एंड आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर जो शेयर है, दिस शेयर इज राइट नाउ अराउंड 1600 to 1900। ठीक है, तो काफी अच्छा ग्रोथ है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। सिमिलरली एक और स्टॉक है जिसका कल मैं एनालाइज कर रहा था बहुत देर से, उसका नाम है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखो, उसका शेयर प्राइस रिसेंटली अभी 6 महीने पहले गया था 38 पे। राइट नाउ कल वो ट्रेड हो रहा था 19 रुपया पे। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज अ पेनी स्टॉक, राइट। बट सोचो कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा एक कहावत है। तो एंड सिक्योरिटी एनालिसिस में भी आप लोग वो पढ़े हो, राइट। तो हिस्ट्री रिपीट्स अगर इटसेल्फ होता है, इफ दैट वर्ड इज ट्रू, तो 19 रुपया में आज के टाइम पे अगर मैं मान लो 2000 शेयर खरीद लेता हूँ, तो आने वाले टाइम पे वो 38 तो रीच करेगा ही करेगा ना। सो इट विल बी डबल ऑलमोस्ट। सो दिस आर सम ऑफ द फंडामेंटल्स। एंड वहां पे आप देखना इस पर्टिकुलर जो एसेट क्वालिटी है इस पर्टिकुलर बैंक का कितना अच्छा है। एंड रिटर्न, और एक मेजर है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स आप देखना कि कितना अच्छा, एकदम जो ग्राफ है ना, ऐसे एक ट्रेंड बन गया है। 3 साल का उसका ग्राफ देखना, ऐसे ऊपर गया है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, इट शोज द कंसिस्टेंसी in the earnings of the company, and if that consistency is there, then you must invest in that company. That company will give you obviously some return in the long run. This is the first fundamental trick, हमेशा याद रखना कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मेजर जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। क्योंकि देखो कंपनी
का इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, हॉरिजॉन्टल है, बट कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो वर्टिकल है। व्हाई वर्टिकल? बिकॉज द कंपनी इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ कैश, द ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज वर्टिकल एक्सपेंशन। But when it comes of horizontal expansion, it means क्या, other businesses, mergers, acquisitions, equity carve out, means एक जगह से पैसा निकाला फिर दूसरी जगह पे लगा दिया, इस तरीके से काम हो। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि आप एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो बट उसके ऊपर रिटर्न क्या आ रहा है? आप दूसरे कंपनी को खरीद रहे हो बट क्या एक्चुअली में आपका कोई एडिशन हो रहा है प्रॉफिट में? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल देके क्लियर कर रहा हूँ। अभी रिसेंट बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ है, आप जानते हो, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक पीएनबी के साथ मर्ज हो गया। तो अगर पीएनबी के साथ मर्ज हुआ तो आखिर में क्या पीएनबी का प्राइस ऊपर गया मर्जर होने के बाद? क्या आपने ऑब्जर्व किए हो? नहीं, वही जो 48-58 रुपीज में जो ट्रेड हो रहा है उसी में ट्रेड हो रहा है, उसमें कोई उन्नति नहीं हुआ। अब क्यों हुआ ऐसा? क्वेश्चन तो ये भी होना चाहिए ना कि क्यों हुआ ऐसा? हुआ इसलिए क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, दोनों का ही एनपीए बहुत था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब मान लो कि एक बैलेंस शीट है गुड, अब गुड के साथ बैड बैड ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या, गुड भी तो डाइल्यूट हो गया दूसरे का एसेट अगर ले लिया तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्जर हमेशा कैन नॉट लीड टू ग्रोथ। बट यही चीज अब आप मार्जर देखो, टाटा एंड आपका लैंड रोवर एंड जैगुआर, दैट डील वाज गुड। क्यों? क्योंकि उस डील को फाइनलाइज करने के लिए करीबन 650 करोड़ टाटा के पास कैश खत्म हो गया था। डू यू नो दैट स्टोरी? तो वहां पे कॉन्सेप्ट है लिवरेज बाय आउट। लिवरेज बाय आउट मींस व्हेन यू कैन नॉट फाइनेंस दैट मर्जर यू हैव टू टेक सम लोन। एंड टाटा का कुछ प्लांट्स को उसने मॉर्गेज रखा, मॉर्गेज रख के 650 करोड़ लोन लिया था, एंड लोन लेके फिर वो लोन से वो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज खरीदे थे। बट उसमें उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया बाद में आप देख रहे थे कि 2 मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किया इंडिया में भी, इंडिया से प्रॉफिट हुआ, प्लस क्या फॉरेन एंटिटी में भी एक लग्जरी ब्रांड था वो, ठीक है, जो अफोर्डेबल प्राइस में वो लोग बेच रहे थे। तो दे कैप्चर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्केट इन द यूके एंड दैट एडेड टू द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। तो फर्म का वैल्यू क्या, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको पहले दिन ही बोला था कि एक प्री मार्जर वैल्यूएशन और एक पोस्ट मार्जर वैल्यूएशन, तो हमेशा ये दो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन मैट्रिसेस क्या है? वन ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिसेस इज दिस वन। आपको देखना पड़ेगा कि फिर ये जो ROIC का पोजीशन है ये कितना है। दूसरा पोजीशन मैंने क्या बताया, ROA, कि आपका जो एंटायर रिटर्न ऑफ एसेट्स है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ मल्टीपल्स हैं जिसको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू बोल के एक पर्टिकुलर है, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। तो अगेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैपेक्स। दैट मींस जितने भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हो, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ, ये सारा कुछ आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। प्लस नेट करंट एसेट्स भी आपको ऐड करना पड़ेगा। एंड देन नेट करंट एसेट्स में क्या है? अगेन कल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, नेट करंट एसेट्स मींस नथिंग बट नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। इज इट ओके? तो ये फॉर्मूला सारा आप प्लीज लिख लो। एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी क्या है जो आप नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो? नेट फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर बट नेट करंट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस, इट इज जस्ट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो हम अकाउंट में जनरली कर देते हैं ना कि एक्चुअली में कितना खरीदा बेचा गया है या नेट एडिशंस क्या हुआ है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या होता है बताओ? एडिशंस, परचेसेस ही तो होता है।
तो आप फिर से उस मैट्रिक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट जो कल आपने लिखा था, ये मेजर्स आप कैलकुलेट करो कि इफेक्टिव टैक्स रेट उनका कितना है एंड साथ साथ ROIC कितना है। प्लीज कंप्यूट। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। And I will propose management की इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सेमेस्टर में इसके साथ थोड़ा सा हर सेमेस्टर के बाद लेक्चर में आसानी हो जाएगी। पहला दिन उनको ऑफिस कैसा रहा सर उन्होंने कहा कि नॉर्मल ट्रेनिंग करा रहे हैं। हाँ अभी तो इंडक्शन उनको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को कवर कर लेंगे, तो पढ़ना होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन 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 कौन? कल मैं ज्वाइन, हाँ 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 हाँ, ओके। मैं तो हिंदी के लिए आपको बोल रहा हूँ, हिंदी के लिए आप आओ, ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे हैं और इसमें सर आपके वीडियो क्या है? हाँ करते सकता है, छोटा सा चैनल है, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो इसमें मैं सारे जितने भी वीडियोस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो ही सिर्फ अपलोड होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिस के बाद अगर क्या रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुंदर है जो पढ़ाया है वो याद हो जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करने को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। बहुत तरीके का लेक्चर्स मिलेगा तुम्हें, कुछ स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा, कुछ मिलेगा, ऑपरेशंस रिसर्च का मिलेगा। ये जब मैं ये कर रहा था हाँ हो जाए तो बताना। आता है
शीट करते हैं टैक्स हॉलिडे जैसे ऐसे कुछ यूजर सिस्टम का होता है देन दैट इज दैट ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है तो राइट पॉइंट हो गया ये तो सीरियस है बेस होगा आपने असाइनमेंट के तौर पे आपको एक बैलेंस शीट डाउनलोड करो चाहे वो आईटी कंपनी का हो चाहे बैंकिंग कंपनी किसी करके करो फिर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगना है बस दो चीज हाल फिलहाल के लिए करना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हालांकि एनालिसिस को पूरा ही मिलेगा तो मनी कंट्रोल से आपको पूरा एनालिसिस सिद्धार्थ सर आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या करूं उधर अलग से क्लास ले क्या होता है इसमें 34.6 और इसमें रिजल्ट सब पूरा पूरा एक मतलब Now, if you look into this slide, I hope you have finished the problem, right? Now, if you look into this particular slide, you will see that how the original formula has been dissected into several parts. And lastly, we have come out with two main factors or key drivers in this particular return on operating invested capital computation. One is operating margin and good morning, sir. So one is operating margin and another is capital turnover. So these are the two key drivers. So that means if this ratio goes up or it goes down, it will be impacted by either these of the two. So when you are interpreting your results, mind you, again, I am repeating this sentence. Whenever you are interpreting the results, you should focus on these two parameters, that what had been the operating margin. If there is a decline in the operating margin, then the overall ROIC will go down. If any of the two key drivers go down, yes or no? And similarly, if operating margin holds good, if the capital turnover goes down, then again also ROIC will go down. So in this way, you need to defend your comments. Okay, what is the actual reason behind the decline of ROIC over first period to the second period, or the third period to the fourth period? No, DuPont is something else. उसके साथ और एक extension है, right?
that includes the turnover also, that includes the profitability also, and that includes one more thing as well, the marketability as well. So 3 things are included in that, in the dew point. And sales, sorry, one more element, I think sales or margins, these things. So the leverage is also included in that. So 3 things are included in dew point, but this is separate, completely separate thing from dew point. It is the, as I said, organic profit of a company. Now, how the organic profit is getting influenced by these 2 drivers, that is the explanation. Now, if the organic profit in some year is very low, and again, the next period is very high, then the management will come to a question, right? That why in the second year, this particular bar is showing you, why? So the answer of that why lies in these 2 drivers. किस लिए हमारा ROIC डिक्लाइन हुआ है, उसका जवाब आप इन 2 ड्राइवर्स में जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है. इज इट क्लियर? इन्वेस्टेड कैपिटल में ना, इन्वेस्टेड कैपिटल आई थिंक प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखे हो तो उसमें क्या था, टोटल एसेट्स माइनस ऐसा कुछ था ना, देखो एक फॉर्मूला था इन्वेस्टेड कैपिटल का. देखो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स इन द बैलेंस शीट माइनस नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्सेस कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. याद करो, देखो स्क्रीन पे देखो, सी इन द जूम स्क्रीन, आई हैव हाइलाइटेड द फॉर्मूलास. यस सिद्धार्थ सर. सर मैं अभी आ नहीं सकता, क्लास चल रहा है, प्लीज सॉरी सर. सर बाद में बात करते हैं, अभी क्लास चल रहा है सर. राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला. सो प्लीज इन फॉर्मूलाज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली याद करने की कोशिश करो, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना एक प्लीज नोट्स बनाइए. मैं तो दे ही रहा हूँ आपको सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम अपना एक नोट्स बना लीजिए. चाहे आप मेरे से स्लाइड ले लो, आपको अगर लगता है तो स्लाइड को अच्छे तरीके से प्रिंट आउट कर लो. एंड आई थिंक आप अगर ग्रे स्केल में प्रिंट आउट या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट ले लो या स्लाइड सॉर्टर में ले लो, आपको अगर लगता है तो ठीक है. बट उसके ऊपर नोट्स कुछ अपना बना लो ताकि आपको याद रहे. क्योंकि देखो, ये एक ऐसा चीज है फाइनेंस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं रहेगा. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, मैं उसमें आपका बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता. ओके, अगेन इफ द लिंक स्टॉप्स देन जस्ट वही सेम लिंक क्लिक कर लेना. हाँ, and we are almost at the end of the first unit. Do you know that? पता भी नहीं लगा होगा आपको. और भी है हालांकि, there are still some major topics left. ये सेकेंड यूनिट चल रहा है. Do you know that? सेकेंड यूनिट का और एक पार्ट आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, वो एक छोटा टॉपिक था, बट नाउ द एंटायर थिंग विल बी डिस्कस्ड. ओके, जैसे इक्विटी, फिर आपका सारा कुछ. इट इज द आइटरेशन ऑफ द टॉपिक्स विच यू हैव डन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
डन, कॉपी हो गया। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सी ऑपरेटिंग मार्जिन again it is influenced by three things. What? One is gross operating margin, which is a component of gross profit. COGS जैसे कैलकुलेट करते हो, COGS क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही होता है, करेक्ट। तो COGS डिवाइडेड बाय सेल्स, रेवेन्यू मीन्स व्हाट? सेल्स। सो दिस इज अनदर ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन हम बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन, GOMS, ओके। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन। नेक्स्ट इज सेलिंग जनरल, इसे SGAR बोलते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दीज आर ऑल आइटम्स ऑफ द PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना, ओके। सो and the last is non-cash expense ratio. Non-cash expense means जो other depreciation आ गया, ठीक है, तो amortization आ गया, so this will be all. but यहाँ पे एक चीज और missing है, क्योंकि ये मैंने बुक से लिया है तो मैं छेड़ नहीं सकता इसको, दिस कंटेंट को, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। there is another kind of expense called financial expenses, right? सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड दे रहे हो, कमीशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे हो, डायरेक्टर सैलरी एंड रेम्यूनरेशन जो दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपका कुछ हद तक फाइनेंशियल, फिर डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर रहे हो, सो दीज आर ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, राइट। तो वो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन को इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल आइटम्स ऑफ, हालांकि डिविडेंड जब देते हो तब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हो, पता है ना आपको, एप्रोप्रिएशन से ही तो हम देते हैं डिविडेंड, ये सारा चीज। Am I मेकिंग सेंस? ये सब किए हो या नहीं किए हो, बोल दो हाँ ना। सार्थक तो ये सर बोल दिया, ये सर तो +1 हाँ मैं इसलिए पूछ लिया। तो अगेन आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट, अगर आपको रिपोर्ट में और लिखना है, एक्चुअली लिखना पड़ता है कि किस कारण ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लक्चुएट किया है, क्या हमारा COGS बढ़ गया है, या सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ गया है, या हम डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, इसके कारण हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है। तो ये सारा जितने भी रीजंस हैं, ये रीजंस यू नीड टू डिफाइन ओवर हियर। And last but not the least, if you talk about capital turnover, there are two again ratios. One is fixed asset turnover ratio, another is current assets turnover ratio. So these two will influence the capital turnover of the firm. तो यहाँ पे फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या नया परचेज किया है, that's why क्या turnover has gone down, because turnover में क्या होता है, sales divided by क्या, fixed assets, यही करते हो। बट मान लो कि if there is an addition in the fixed assets in the current year, then what will happen? The ratio will decline. सार्थक, yes or no? अगर इस साल आपने एक्सेस एसेट्स परचेज किए हो, एक्स्ट्रा एसेट परचेज किए हो, तो सेल्स टर्नओवर विल डिक्लाइन और इट विल इंक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज ही होगा, राइट। जैसे एडिशन, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, सिंपल से बात है। सिमिलरली करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इट इज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, दैट मींस व्हाट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इज कंप्राइजिंग ऑफ द करंट एसेट्स, यही हम डिफाइन करते हैं। सो दैट विल अगेन define the capital turnover, and this is a component of pre-tax ROIC. okay, post tax क्या होगा, just ये जो ROIC EBIT multiplied by 1 minus cash tax rate, ठीक है। तो ये ट्रिक को आप अगर याद करते हो तो आपको सारा फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, मैं प्रसन्ना चंद्रा देखो, मैं 2 बुक फॉलो कर रहा हूँ और कुछ रिसर्च पेपर्स भी, एंड ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो है ही। तो एक प्रसन्ना चंद्रा, क्योंकि वो बहुत लेमन लैंग्वेज में एंड स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। दामोदरन में क्या, दामोदरन में आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज टेलिंग, राइट। तो फॉर अ रेफरेंस आई विल ऑलवेज रेफर टू यू। देखना आपका जो लेसन प्लान मैंने भेजा है, तो वहां पे एक लिंक है, दामोदरन का लिंक है, तो उस लिंक को हमेशा आप एज ए बाइबल मानो, टूल मानो, ठीक है। जब भी कॉर्पोरेट में आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो रेफर टू दैट लिंक, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है ना, कॉर्पोरेट का क्वेश्चन, वो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से करिकुलम अब डिजाइन किया हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, आगे जाके भी कोई दिक्कत ना हो। आई डोंट नो कि आप लोग पूरा करिकुलम गो थ्रू किए हो या नहीं किए हो, बट दैट इज हाउ आई हैव प्लान। तो यहाँ पे ROIC भी एक बार कैलकुलेट कर लो आप लोग, और अगर ये सारे कंपोनेंट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड कैपिटल टर्नओवर, ये भी आप कंप्यूट कर सकते हो तो कंप्यूट करो, और करके कमेंट लिखो जो किस कारण 1, 2 एंड 3 इयर्स, वो जो 3 साल है ना, तो वो 3 साल में एक नोटिंग दो नीचे, करो, करके बताओ। अब धीरे धीरे थोड़ा सा गियर चेंज होगा, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में ही आप लोग रन कर रहे हो। Now today's assignment will be, please note down the assignment. Both of you must download a balance sheet annual report of any organization of your choice, and apply the various measurements of the enterprise DCF model, ब्रैकेट में taught